ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने केवीएल के एक न्यूमेरिकल में डील किया, जिसमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वैरायटी के न्यूमेरिकल में डील किया। जैसे कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, 3 अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं। फर्स्ट containing voltage source and resistances, second containing current source also but in the outer loop, and third variety containing current source in the inner loop of the two meshes. So now we are going to deal with the second type of numericals. So let us take our example. हम लोग अब यहाँ वो एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें हम लोग डील करेंगे सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में, कि जब कोई इंडिविजुअल करंट सोर्स, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसी आउटर मैश में आ जाए तो आप उसे कैसे काउंटर करेंगे, कैसे उसे केवीएल के इक्वेशन में या मैश एनालिसिस के इक्वेशन में आप उससे डील करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डील करने वाले हैं केवीएल के सेकंड वैरायटी के न्यूमेरिकल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, द डिफरेंस बिटवीन द वेरी फर्स्ट वैरायटी एंड सेकंड इज दैट फर्स्ट वैरायटी में आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा, देयर वाज टू बेसिक काइंड ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट वन वाज रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन वाज वोल्टेज सोर्स। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, दैट वन इज द करंट सोर्स। So now I will tell you how to counter with this kind of problems, जहाँ पे आपके पास including resistance and voltage sources, when we will be having the current sources also. So now the basic method जो हम लोगों ने अभी तक KVL में use किया हुआ है, the first thing, the first very step that we are going to identify is how many meshes are present in the circuit. There are basically 3 basic meshes are present in the circuit. Quickly एक बार revise करा देता हूँ मैं आप लोगों को. What was the mesh? It was a closed path including the various electrical elements through which current flow. But the basic difference between mesh and a loop must be clear within your minds is that closed path, that particular closed path must never contain any other different closed path. So now finding the number of meshes, we can see that there are 3 basic meshes, mesh number 1, 2 and 3. अपने अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीनों meshes को, and the second step is that you have to assign individual mesh currents to each mesh in a particular clockwise direction. So now repeating that same step, and then I will gradually tell you how to deal with this 12 ampere source. So now solving this particular numerical, first thing is that we have to identify the number of mesh. You all can clearly see there are basically 3 meshes. So we are writing it as there are 3 meshes present in the circuit, and now assigning the individual mesh currents in clockwise direction, we can write it as I1, I2 and I3. So basically out of these 3 meshes, हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर तीनों mesh currents assume कर लिया है. Important task is, important thing is कि आप जो भी जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, whether you are using clockwise direction or you are assuming an anti-clockwise direction motion of the currents, important thing is that जितनी भी meshes आपके पास अवेलेबल हैं, हर एक mesh की डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा सेम होनी चाहिए. It doesn't matter whether you are taking it as clockwise direction or you are taking it as anti-clockwise direction. That is absolutely correct. आप दोनों ही कंडीशन में सेम वैल्यू निकाल सकते हैं, just because these are simply assumptions. So now, assuming all these mesh currents, the important thing is that we have to find the KVL equations. हर एक इंडिविजुअल मैश के लिए KVL इक्वेशन फॉर्म करना है हम लोगों को. और जैसा कि मैंने पिछले सेक्शन में या पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि जितने नंबर ऑफ अननोन मैशेस होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनने वाली हैं आपके पास. सो नाउ अगेन फॉर्मिंग द बेसिक KVL इक्वेशंस, स्टार्टिंग इट विथ अप्लाइंग KVL. देखिए ये लाइन हम लोग जो लिखते हैं बार बार, ये इंपॉर्टेंट इस कंडीशन में है कि एग्जाम में जितना एक न्यूमेरिकल को सही बनाना जरूरी होता है, उतना ही उस न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना जरूरी होता है. सो जस्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन पर्पस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी टाइम यू सॉल्व अ मैश, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू assume this condition, you have to mention this that you are applying KVL in a specific mesh. For example, यहाँ हम लोग mesh 1 की बात कर रहे हैं. So now I am writing applying KVL in mesh number 1. Now again quickly revise what is KVL. आपको क्या अप्लाई करना है? You have to apply KVL as the algebraic sum of all the voltage drops and the algebraic sum of all the sources of EMFs available in the circuit must be equal to 0. यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, KVL entirely based upon the law of conservation of electrical energy. So वो law of conservation of electrical energy तभी work करेगी when you will have an algebraic sum of all the voltage drops, and that sum must be equal to the total applied EMF or the total supplied EMF. तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे. mesh 1 में हम लोग same KVL अप्लाई करने वाले हैं. So now looking at this, we are having 2 types of elements, 2 types of resistances here. One 10 ohm resistance, another one is also 10 ohm resistance. The basic difference is that एक 10 ohm का जो resistance है इसके अंदर एक ही mesh current जा रही है, that is I1. Another 10 ohm resistance is having 2 different mesh currents being shared, so that यहाँ पे आपको resultant current लिखने की जरूरत है. Again writing the KVL equations, we have minus 10 I1 for the first element, then again we can write minus 10 I1 minus I2 for the second element, since these 2 currents are being shared within the section. So forming the resultant currents, we have minus 10 I1 minus I2. Again the question is, again 30 volt क्या लिखें इसको, plus 30 या minus 30? The question जो है
+30 या -30 लिखने का, उसका आंसर बस इतना है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई whether it is a voltage drop or it is a voltage rise. So identifying the direction of current, we can clearly see that the current is flowing from a lower potential towards the higher potential, and this is the basic condition of a voltage rise. ये आप सबके माइंड में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, सबके माइंड में होना चाहिए ये चीज कि we have to first check the polarities and then we have to then decide whether it is a condition of a voltage drop or rise. Seeing that condition, we always express the voltage rise condition with a positive sign and voltage drop with a negative sign. So again आप देख सकते हैं कि यहाँ voltage rise हो रहा है, so we are writing it as 30 plus 30, and this whole thing according to the KVL equation must be equal to 0. Now simplifying this whole section, we get minus 20 I1 plus 10 I2 plus 30 equals to 0, or simply we can write it as minus 20 I1 plus 10 I2 is equal to minus of 30. And this becomes our very first equation. आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ मैशेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस भी आएंगे, बट मैंने यहाँ थर्ड मैश की इक्वेशन को मेंशन नहीं किया हुआ है. यहाँ पे आपको बोर्ड में कहीं पर भी I3 नहीं दिखाई देगा. जैसे ही हम लोग थर्ड मैश में पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोगों ने I3 को मेंशन नहीं किया यहाँ पे. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच सेपरेट्स द टाइप 1 क्वेश्चंस टू द टाइप 2 क्वेश्चंस. यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का. तो सिंपली हम लोगों ने मैश इक्वेशन फॉर्म कर लिया. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक मैश इक्वेशन जो आप फॉर्म करते हैं इसको प्रॉपर्ली एक बॉक्स के फॉर्म में शो कर दें. प्लस पॉइंट रहेगा, एक एडवांटेज मिलेगा आपको इस चीज का एग्जाम के मार्क्स में भी. एंड नाउ अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, अगेन अप्लाइंग द केवीएल इक्वेशन इन मैश नंबर 2. सो फॉर द प्रेजेंटेशन आई एम राइटिंग इट एज अप्लाइंग केवीएल इन मैश 2. देख सकते हैं मैश 2 में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 रेजिस्टेंसेज हैं, बट एक भी वोल्टेज सोर्स नहीं है हमारे पास, एक भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है. So forming the equation we can write it as, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं तीनों भी एलिमेंट्स के अंदर से. बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप एलिमेंट्स के अंदर से फ्लो होने वाली करंट को उसके साथ मेंशन करना ना भूलें, इंपॉर्टेंट थिंग. तो शुरुआत किया हम लोगों ने 5 से, तो -5 I2, अगेन 5, तो दैट इज अ पोर्शन जहां दो अलग अलग मैश करंट शेयर हो रही हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच में. तो वी कैन राइट इट एज -5 I2 minus I3, एंड देन 10 ohms can be written as minus 10 I2 minus I1. Since there is no source of EMF, we can write it directly as equal to 0. Now simplifying this whole equation, we can write it as 10 I1 minus 5 and minus 10 can be written as minus 20 I2 plus 5 I3 equals to 0. This is our equation number 2. यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा I3 करंट भी लिखी हुई है. So now the important thing is that what is the role of I3 section? What is the role of this mesh 3? अब mesh 3 में आपको एक करंट की वैल्यू गिवन है, एक करंट गिवन है, that is 12 ampere. You can clearly see that in this whole mesh, the word that you are using for the representation of this mesh current is I3, and that same I3 is directly given to you without using any KVL equation. You can directly write it as I3 is 12 ampere, but the important thing is that see the direction. I3 की direction आप देखिए. We have assumed I3 to be flowing in a clockwise direction, whereas this 12 ampere section is going in anti-clockwise direction. Mentioning this, you can clearly write it as I3 is equal to minus of 12 ampere. This is the most important part, जो type 1 और type 2 के बीच का difference है. Type 2 questions के अंदर जब भी आपके पास एक independent current source होगा किसी outer mesh में, तो वहां आपको इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. वहां इक्वेशन इसलिए नहीं फॉर्म करने की जरूरत है क्योंकि केवीएल के बेसिक करंट्स की वैल्यू इस सेक्शन के अंदर ऑलरेडी गिवन है आपको 12 एम्पियर. इसी के अंदर एक और वैरायटी होती है कि अगर सपोज देयर आर मोर देन 1 करंट सोर्सेस इन द सेम सेक्शन, सो वन थिंग दैट यू हैव टू क्लियरली चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट्स. अनदर थिंग दैट यू हैव टू चेक इज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ करंट. यहां आप देख सकते हैं हमारी I3 करंट हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ इट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेयर एज दो करंट दो अलग अलग डायरेक्शन में सेम मैश के अंदर फ्लो हो रही है. तो इतना तो क्लियर है कि 12 और 20 का रिजल्टेंट जो होगा दैट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ I3. सो 20 और 12 का रिजल्टेंट आप देखेंगे 12 इज ट्रैवलिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेयर एज 20 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इफ यू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 12 एम्पियर फ्रॉम दिस 20 एम्पियर सेक्शन, you get a value of 8 ampere flowing in the direction of I3, that is in clockwise direction. So उस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप लिख सकते थे I3 is equal to 8 ampere, that too in a clockwise direction. तो ऐसे कंडीशंस में हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ऐसे कंडीशंस में हमको कभी भी मैश इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है. दिस इज अ कंडीशन वेयर अ करंट सोर्स लाइज इन अ आउटर सेक्शन और outer portion of the loop
जहां वो किसी और मैश के साथ कभी शेयर नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में आपको मैश इक्वेशन नहीं फॉर्म करनी है, सीधे उस करंट की डायरेक्शन देखते हुए उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है आपको। सो फिलहाल जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेट अस गेट बैक टू द सेम क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, इसकी डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शोन है, whereas we have assumed I3 in a clockwise direction. That's why we can directly write it as I3 is minus 12 ampere. So अगर आपके पास I3 की वैल्यू है, that means the total number of unknown currents are 2. There are 2 basic unknown currents. So we are having 2 basic mesh which needs to be solved. तो अगर 2 mesh है जिसके अंदर 2 unknown currents है, तो इक्वेशन भी आपको 2 ही मिलेंगे और 2 ही unknown इक्वेशन होंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ unknowns भी आपको 2 ही दिखेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आप खुद देख सकते हैं, we are having I1 and I2 as 2 unknowns. In the second equation, since we are having 5 I3, so we already know the value of I3 is minus 12. We can directly put it in equation number 2, and then again by solving this, again we will get only 2 unknowns, and these unknowns can be simplified. Let us see how these can be simplified. Again, now putting the value of I3 equals to minus 12 ampere in our equation number 2, then we get 10 I1 minus 20 I2 is equal to 12. आपने यहाँ पुट किया, ये हो गया 60, माइनस 60 उधर जाके हो गया प्लस 60, एंड दिस बिकेम आवर एक्चुअल इक्वेशन नंबर 2. सो इस कंडीशन में आपको 3 अलग अलग मैश के इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डायरेक्टली हो गया उस मैश का करंट, उसको आपने पुट कर दिया इक्वेशन के अंदर और आपके पास 2 अननोन्स के फॉर्म में इक्वेशन आ गया. नाउ अगेन डूइंग द सेम थिंग जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने किया हुआ था, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से और यहां से कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 2 मैश इक्वेशन फॉर्म किए क्योंकि हमारे पास 2 ही मैश अननोन्स थे. देखने में आपको तीनों मैश दिखाई दे रहे हैं. थर्ड मैश की करंट ऑलरेडी गिवन थी आपको. सो दिस वाज आवर टाइप 2 क्वेश्चन. पूरा सिंप्लीफाई किया इसे. I1 की वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0 एम्पियर एंड I2 वी विल गेट माइनस 3 एम्पियर. I3 वी आर ऑलरेडी हैविंग एज माइनस 12 एम्पियर. सो दीज आर द 3 मैश करंट्स. अब आप वापस एक बार आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर. इसमें लिखा हुआ है फाइंड द करंट इन ए बी ब्रांच. यू कैन इजीली लोकेट ए एंड बी ब्रांच. क्वेश्चन में पूछा हुआ है यू हैव टू आइडेंटिफाई द करंट. यू कैन क्लियरली सी इफ यू फाइंड or if you write it as I dash, you can clearly see I dash is nothing but I2. You can easily say that I dash is equal to I2 is equal to minus of 3 ampere जो आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है. तो यहां से आपने I2 करंट कैलकुलेट कर लिया. अगर सपोज इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, दैट ऑल्सो यू कुड हैव इजिली कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सिंपली यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं. V is equal to I into R. Since in this section R is 5 ohms and I is I2, therefore दोनों सेक्शंस को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ की वोल्टेज निकाल सकते थे. इसी सेम क्वेश्चन के अंदर आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर इसी सेम ब्रांच में आपको पावर निकालना होता तो यू कुड हैव कैलकुलेटेड इट एज पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, वेयर द वैल्यू ऑफ I मस्ट बी पुट फ्रॉम I2 एंड R मस्ट बी 5. सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पावर अक्रॉस दिस सेक्शन. सो आप ये देख सकते हैं कि बाय यूजिंग द बेसिक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप इसी सेक्शन के अंदर वोल्टेज, करंट, पावर, जितनी भी टाइप की बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच. सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आवर टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चंस. मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ assumption of a whole mesh current into the given current and solving the remaining mesh sections, जो कि टाइप 1 में अवेलेबल नहीं था. यानी अगर आपके पास एक भी करंट सोर्स होता है इन अ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इन अ इंडिविजुअल mesh without being shared between another meshes, then you can directly write it as the individual mesh current I3 assuming its direction, considering its direction. अगर आपने I3 clockwise assume किया हुआ है तो definitely आप इसकी direction देखेंगे तो आप बता सकते हैं 12 ampere is moving in an anti-clockwise direction. That's why we have assumed it as minus 12 ampere. So this is the most important thing. Exam के point of view से अगर आपको बताऊं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको हर एक individual mesh equation को properly mention करना जरूरी है. जितनी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं करते हैं, हो सकता है कि इन सारी वैल्यूज को आप ऐसे मेंशन कर दें बॉक्स के साथ. ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा आपको एग्जाम में मार्क्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और बिल्कुल ये ना भूलें कि मैश करंट्स I1, I2, I3 कैलकुलेट करना ही सब कुछ नहीं है. आपको क्वेश्चन पे भी नजर रखनी है. आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्वांटिटी कौन सी पूछी हुई है. कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इस चीज को कि मैश करंट के बाद भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने को बचा हुआ है. कई बार हम यहीं पे एंड अप कर देते हैं क्वेश्चन को, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 2 क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप 3 क्वेश्चन. जैसा कि मैंने बताया टाइप 2 और टाइप 3 बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से. जरा सी डिफरेंस है दोनों के बीच में. जरा सा डिफरेंस किस पॉइंट पे? यहाँ पे आपने देखा अभी ये 12 एम्पियर का करंट सोर्स वाज इन अ इंडिपेंडेंट मैश. नाउ
the same current source will be between two meshes. Now we will learn how to deal with that kind of situation. This is entirely a different situation. अब देखते हैं उसको कैसे डील करना चाहिए. आइए देखते हैं टाइप 3 का एक क्वेश्चन. तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था टाइप 3 KVL न्यूमेरिकल्स के बारे में, इसकी खासियत क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 3 क्वेश्चन वेयर कि टाइप 2 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कहीं 12 एम्पियर का एक सोर्स दिखाई दे रहा था जो कि आउटर मैश के अंदर आ रहा था. यहाँ खास बात आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक 5 एम्पियर का सोर्स बना हुआ है जो दो अलग अलग मैश के बीच में आ रहा है. दिस इज द वेरी क्रूशियल काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. और मैं आपको बताऊंगा इससे डील कैसे करेंगे आप लोग, कैसे इस कंडीशन में जो भी रिक्वायर्ड पार्ट पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अ लुक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएशन इन दिस KVL. फर्स्ट थिंग दैट जो आप कोई भी इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इज दैट वी आर हैविंग 3 काइंड्स ऑफ मैशेस, 3 टाइप्स ऑफ मैशेस, 3 different meshes, and a current source is being shared between the two very mesh. So let us see how to solve. So this demands a particular representation of a supporting method, that is a method of super mesh. Super mesh का एक method होता है which is particularly designed to support this kind of numericals and solve them by using the KVL. Kirchhoff's voltage laws के साथ solve करने के लायक किसी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर मैश मेथड. और ये एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल कंडीशन है. कौन सी कंडीशन है? व्हेनेवर अ करंट सोर्स इज बिटवीन टू डिफरेंट मैशेस देन वी नीड टू अप्लाई अ सुपर मैश इफ वी नीड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग अ KVL. तो मैं आपको बताऊंगा सुपर मैश मेथड को आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर. यहां देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, बट द कंडीशन इज दैट अगर आप KVL जैसे अभी तक अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ मैश, देयर आर 3 मैशेस. देन इसके बाद आप सारे मैशेस को मैश करंट असाइन कर देंगे. आप अज्यूम कर लेंगे सारी मैश में इंडिविजुअल मैश करंट्स हैं I1, I2 एंड I3 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. देन इसके बाद द क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है अब इस 5 एम्पियर का क्या करें. तो एक बार क्विकली यहाँ देख लीजिए 5 एम्पियर करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है. हम लोग अगर इस ब्रांच के अंदर की कोई करंट आपको पहले कैलकुलेट करने को दी जाती, सपोज एक इसी के अंदर एक छोटा सा वेरिएशन चेंज कर रहा हूं मैं, सपोज अगर इसी ब्रांच के अंदर मैं एक नया रेजिस्टेंस बना देता 1 ओम का और मैं आपको बोलता कि फाइंड आउट करिए इसका करंट कितना है, तो आप क्या करते हैं? आप इंडिविजुअली मैश इक्वेशन फ्रेम करते, I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करते एंड देन आप इसमें से चेक करते कि I1 और I2 में से ग्रेटर करंट कौन सी है. देन यू वुड हैव सब्ट्रैक्टेड द ग्रेटर करंट विद द लोअर करंट एंड देन जो भी करंट आया उसे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप लिखते हैं. अगर सपोज I2 ग्रेटर करंट होता तो जो I डैश यानी रिजल्टेंट करंट होता आप I2 की डायरेक्शन में लिखते. अगर I3 ग्रेटर करंट होता तो आप I1 ग्रेटर करंट होता तो आप I1 की डायरेक्शन में डाउनवर्ड फ्लो शो कर देते I डैश को. तो अब बस यही चीज करना है रिवर्स ऑर्डर में, यानी इस बार आपको क्वेश्चन में ही डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ करंट भी गिवन है. जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ शोन है और इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, यानी आंसर गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये किसके रिजल्टेंट से आई, ये वैल्यू किन दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है. तो वो कंपोनेंट्स को सबसे पहले आपको एक्सप्रेस करना है कि ये किन कंपोनेंट्स का आंसर है, किन कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है. सो इन आवर वेरी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सुपर मैश लॉ वी कैन राइट इट एज I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5. ऐसा कैसे लिखा हम लोगों ने देखा कि I2 की जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, I2 के करंट की फ्लो होने की जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यानी डेफिनेटली इसके कंपोनेंट्स में से I2 माइनस I1 हुआ होगा तभी जाके रिजल्टेंट I2 की डायरेक्शन में आ रहा है. तो चूंकि रिजल्टेंट I2 की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हम लोगों ने लिखा I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5. नाउ सिंस वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ मैश मींस नंबर ऑफ KVL इक्वेशन, 3 मैश है तो 3 KVL इक्वेशन होनी चाहिए और हर इक्वेशन में तीनों अननोन शो होने चाहिए. यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड अननोन इज मिसिंग, I3 कहीं भी मेंशन नहीं है. अगर वैसा कंडीशन है तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे तो वी कैन राइट इट एज माइनस I1 प्लस I2 एंड सिंस I3 का कोई भी टर्म नहीं है वी कैन राइट इट एज 0 I3 इज इक्वल टू 5. जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे सेम न्यूमेरिकल को तो इंपॉर्टेंट थिंग ये होगा कि आपके पास तीनों अननोन्स होने चाहिए, अदरवाइज गलती से हम लोग 5 पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ I3 और पूरा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो भी अननोन सेक्शन नहीं अवेलेबल होता है उसकी जगह उसको आप 0 लिख के पुट करें, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में उसे पुट करें. आगे बढ़ते हैं, KVL अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. सुपर मैश के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा सबसे पहले करंट को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में 5 एम्पियर के कंपोनेंट से I2 एंड I1, तो हम लोगों ने एक्सप्रेस किया I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5. जनरलाइज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है हम लोगों ने. अब चलते हैं सुपर मैश के सेकंड पार्ट में. अकॉर्डिंग टू द सुपर मैश एक बार आपने इस करंट को
लिख दिया, इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो अब आपको अज्यूम करना है कि दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द सर्किट, एंड नाउ यू हैव टू कंबाइन बोथ द meshes and form a single KVL equations, but again you have to consider their individual current directions, individual currents. मतलब आपको इस 5 एम्पियर को आप जब जैसे ही आपने एक्सप्रेस कर दिया तो अब अज्यूम करना है कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट है यहाँ से, और जो दो मैश दिख रही थी अभी तक अब वो कंबाइन होकर एक मैश हो गई है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इंडिविजुअल मैश करंट अभी भी वही रहेगा। जिस मैश की बाउंड्री के अंदर I1 चल रहा है वहां I1 के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, जहां I2 है वहां I2 के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं यहां से, फॉर मैश और सुपर मैश वी कैन राइट अ कंबाइंड इक्वेशन एज, सबसे पहले इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए लिखा जा सकता है -1 I1 फॉर दिस वन, देन अनदर एलिमेंट -1 I1, देन -2 I1। जैसे ही -2 पे हम लोग पहुंचेंगे आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे एक करंट सोर्स था, ये बाउंड्री थी, इसके बाद से जो सेक्शन होता है दिस इज फॉर I2। सो फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट वी विल स्टार्ट राइटिंग एज -2 I2 -3 I2 -I3, देन इसके बाद सारे सोर्सेज ऑफ EMF। सो फॉर 1 volt वी कैन राइट इट एज +1, फॉर 2 volt वी कैन राइट इट एज +2, whole thing will become equal to 0. Now simplifying this whole equation we get -1 I1 -1 I1 -2 I1, this becomes -4 I1, then -2 I2 -3 I2 becomes -5 I2, and -3 I3 becomes +3 I3 equals to, जितना constant section है उस साइड भेजते हैं उसे, -1 + 2 becomes equal to 1, उस साइड जाने के बाद ये हो गया -1, दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 में तीनों ही अननोन करंट्स की वैल्यू अवेलेबल है, तो मार्क कर देते हैं आवर इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस, एक इक्वेशन बच गया फ्रेम करने को, इसको फ्रेम कर लेते हैं जैसे स्टैंडर्ड KVL के अंदर हम लोग फ्रेम किया करते हैं। सो नाउ अप्लाइंग KVL इन मैश नंबर 3, तो फिर से KVL अप्लाई कर देते हैं, वही यूजुअल पूरे प्रोसीजर्स। स्टार्ट करते हैं -2 I3 -1 I3 -3 I3 I2 is equal to +3, and -1 can be written as 2, और उस साइड भेजने के बाद ये हो जाएगा -2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, क्लियरली विजिबल है यहाँ पे एक भी I1 का टर्म नहीं है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम 0 I1 पहले से लिख लें, देन सीक्वेंस में अरेंज करते हुए माइनस एंड माइनस +3 I2, और उसी सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद 2 1 and 3 को आप सिंप्लीफाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स -6 I3 equals to -2। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 3। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें समझने की? इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी कोई करंट सोर्स दो इंडिविजुअल मैश के अंदर आ जाए तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या नोटिस करना है? आपको नोटिस करना है उस करंट सोर्स की डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन को देखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये अगर रिजल्टेंट है तो इसके कंपोनेंट्स क्या थे, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 5 एम्पियर इज द रिजल्टेंट, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो डेफिनेटली इसके कंपोनेंट्स में I2 मस्ट हैव बीन ग्रेटर देन I1, दैट्स वाई जो रिजल्टेंट बचा वो भी I2 की डायरेक्शन में बचा हुआ है। सो इसीलिए हम लोगों ने लिखा I2 - I1 इज इक्वल टू 5। देन अकॉर्डिंग टू द स्टेप ऑफ सुपर मैश आपको इस करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करना है। यहाँ से एक बार आपने इक्वेशन लिख दी, अब इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, इसे नेग्लेक्ट कीजिए और रिमेनिंग दो मैशेस को कंबाइन करके सिंगल मैश इक्वेशन फॉर्म कीजिए। इंपॉर्टेंट थिंग ये है जो नोटिस करना है इसके अंदर, वो ये कि आपको दोनों मैश करंट्स को एज इट इज अज्यूम करना है, यानी जहां I1 की सेक्शन है वहां I1 ही लिखना है, जहां I2 की सेक्शन है वहां I2 ही लिखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 क्वेश्चन। तो टाइप 3 इसीलिए अलग है टाइप 2 से, क्योंकि टाइप 2 में हमारे पास जो करंट सोर्स हुआ करता था वो एक इंडिविजुअल मैश की करंट हुआ करती थी, तो हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सप्रेस करते थे एज द एंटायर मैश करंट टू बी द सेम डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन। वेयर एज इन टाइप 3 क्वेश्चन ये करंट सोर्स दो मैश के बीच में शेयर हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रिजल्टेंट है तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, उसे नेग्लेक्ट किया, सिंगल मैश इक्वेशन बनाया और बाकी सारे इक्वेशंस एज इट इज फ्रेम किए। इतना करने के बाद आप इसे कैल्सी में डालने के बाद सॉल्व करेंगे I1, I2 एंड I3 की वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड, जो भी डिजायर्ड क्वांटिटी होगी आप उसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस,
इस सेक्शन की वोल्टेज पूछी हुई है आपसे, तो इस सेक्शन की वोल्टेज निकालने के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड करंट होगी I2 एंड I3। एक बार आपके पास I2 और I3 की वैल्यू आ गई, आप दोनों में से कंपेयर करेंगे ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, दैट विल बी द रिजल्टेंट करंट ऑफ दैट सेक्शन, and that resultant current, multiply it with 3 ohm resistance, you will find the total voltage across that section. So this was the basic difference between the three types. एक बार quickly मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हम लोगों ने अभी कौन कौन से टाइप्स देखे। फर्स्ट टाइप 1 KVL क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने डील किया इन वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम करना है नंबर ऑफ मैश आइडेंटिफाई करना है, देन सेकंड स्टेप you have to assign an individual mesh current in clockwise direction, then simply you have to form a KVL equation that can be given as summation of I into R, that is the voltage drops, algebraic sum of all the voltage drops must be equal to all the EMFs, और इस फॉर्म में आपको KVL equations फ्रेम करने हैं। नाउ टाइप 2 की मैं अगर बात करूं तो टाइप 2 में हम लोगों ने डील किया ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमारे पास थे वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंसेस एंड इनके साथ आ गए करंट सोर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि करंट सोर्स थे आउटर मैश सेक्शन में, तो हम लोगों ने उसकी कैसे डील किया, तो हमारे पास इंडिविजुअल सेक्शंस में तो हम लोगों ने मैश लगाया, लेकिन जहां आउटर मैश का सेक्शन था, जहां आउटर मैश में करंट सोर्स आया, वहां हम लोगों ने सीधे सीधे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, सीधे जो वैल्यू गिवन थी उसे ही लिख लिया वहां पे, क्योंकि उस सेक्शन में आपको मैश एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइप यानी टाइप 3 पे जब हम लोग गए तो टाइप 3 में हम लोगों ने देखा कोई ऐसा सेक्शन जहां पे वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंसेस और करंट सोर्स तीनों ही चीजें यहां भी अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंस बस इतना था कि यहां पे करंट सोर्स इंडिविजुअल मैश के अंदर नहीं बल्कि दो मैश के बीच में शेयर हो रहा था। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने सुपर मैश का मेथड अप्लाई किया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। सुपर मैश सिर्फ और सिर्फ टाइप 3 क्वेश्चंस पे ही अप्लाई होगा, और सुपर मैश के मेथड के अकॉर्डिंग जो भी करंट की वैल्यू गिवन है विथ डायरेक्शन, आपने उसको काउंटर किया कि उसकी डायरेक्शन को देखा, पता चला आपको कि दिस इज अ रिजल्टेंट, तो आपने उसको उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। सिंस 5 एम्पियर इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपने देखा I2 इज आल्सो गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज I2 minus I1 equals to 5। अगर ये सेम क्वेश्चन इसमें 5 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में बना होता तो आप देख सकते हैं इफ द रिजल्टेंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स देन डेफिनेटली द डाउनवर्ड कंपोनेंट मस्ट हैव बीन ग्रेटर, और आप यहां लिखते हैं I1 minus I2 is equal to 5। ये खास डिफरेंस है जिसका आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको टाइप 3 के अंदर एक और वेरिएशन बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप 3 में एक और वेरिएशन, अगर उस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ एक और एलिमेंट आ जाए, कोई भी एक एलिमेंट आ जाए, तो क्या होगा, इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ बोर्ड के साइड। सेम इक्वेशन, सेम न्यूमेरिकल, सेम क्वेश्चन, बट इंक्लूडिंग अनदर रजिस्टर ऑफ 2 ohm। नाउ द क्वेश्चन इज ऐसे कंडीशन को कैसे काउंटर करेंगे हम लोग। क्लियरली विजिबल है अकॉर्डिंग टू आवर सुपर मैश मेथड, हमें मतलब है इस पूरे ब्रांच की करंट से और इसकी डायरेक्शन से। आप देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि इंडिविजुअल किसी भी सर्किट में सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट कभी चेंज नहीं होती है। इन अ सीरीज कनेक्शन, इन अ सीरीज नेटवर्क, करंट इज ऑलवेज सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज रिड्यूसेस अगर वहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस सेम कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में स्टिल देयर इज 5 एम्पियर करंट विच इज अगेन द रिजल्टेंट। तो अब अगर यहाँ रिजल्टेंट फिर से अपवर्ड जा रही है तो आप चेक करेंगे I2 और I1 की डायरेक्शन देख के पता चलता है I2 भी अपवर्ड जा रहा है, देयरफॉर इस रिजल्टेंट को उसकी कंपोनेंट्स के फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे एंड यू विल अगेन राइट इट एज I2 minus I1 is equal to 5, and then when you will ignore this or when you will neglect this section, automatically this 2 ohm section also gets neglected, और फिर से वही सेम इक्वेशन मिलती है आपको जो पहले बनाया हुआ था आपने। तो इक्वेशंस में आपके कोई चेंजेस नहीं आएगा, करंट सोर्स के साथ सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आ जाएं कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। हाँ, चेंज एक कंडीशन में आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा करंट सोर्स होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। अगर सपोज इस सेम डायरेक्शन में मैंने यहाँ 5 एम्पियर लिखा और यहाँ भी 5 एम्पियर लिखा, अब आपको अगर सुपर मैश अप्लाई करना होगा तो आप इसी सेम कंडीशन में देख सकते हैं बोथ द करंट्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ सेम ब्रांच, so the resultant current must be 10 ampere in same direction। so आप सिंपली ऐसे न्यूमेरिकल्स में इस 5 एम्पियर के दो सोर्सेस को हटा के आप यहाँ पे इक्वेशन में लिख सकते हैं डायरेक्टली अ सिंगल सोर्स ऑफ 10 एम्पियर, और उसे वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था। डायरेक्शंस अगर रिवर्स होंगी तो आप चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सी करंट ग्रेटर है, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप सेम उनका रिजल्टेंट बना के लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट KVL। KVL के हमारे 3 बेसिक टाइप्स, यही 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जिसके अंदर से न्यूमेरिकल्स आते हैं मेन एग्जाम में, और आप ऐसे इन सब से डील कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू KCL, किरचॉफ्स सेकंड लॉ
और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा, केवीएल डील करता है किसी भी सर्किट में वोल्टेजेस के ऊपर। तो वोल्टेजेस हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टाइप के थे, वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप, इनके अंदर डील किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं करंट्स की। अगर सर्किट के करंट्स आपके पास नोन है तो आप इनका यूज करके आप दूसरी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी में हम लोग डील करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डील करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे कैसे बेस होता है किरचॉफ्स करंट लॉ।